आपके लिए लीडरशिप का क्या मतलब है, क्या महत्व है? हम अपनी लीडरशिप का जो इंस्पिरेशन डिराइव कर रहे हैं वो ऐसे लोगों से अपने, हम जिसको हम बुजुर्ग बोलते हैं अपनी सेना की भाषा में, हाँ। हमारे हाँ। सुगाथा जो हमने सुनी है, हम अपना लीडरशिप ले रहे हैं कैसे? लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय जैसे ऑफिसर से। यस, आपको शौर्य चक्र से नवाजा गया फॉर एन एक्ट ऑफ गैलेंट्री जो Yes, ma'am. आपने साउथ कश्मीर में यू शोड यस मैम, एंड इट वाज ऑपरेशन जियो यस मैम। एंड आई वुड लाइक टू नो अ लिटिल बिट मोर, जितना आप कैमरा पे बता सकते हैं, ऑफ दिस ऑपरेशन। 6 जनवरी 2022 को हमें एक पुलिस की तरफ से एक इनपुट मिला कि एक गांव है नज़दीकी जहां पर 3 आतंकवादी छुपे हुए हैं, जिसमें 2 पाकिस्तानी आतंकवादी जिनको आम भाषा में फॉरेन टेररिस्ट बोलते हैं, एफटीज बोलते हैं, और एक लोकल एरिया कमांडर जो कि जैश ए मोहम्मद जो लोकल कश्मीरी था मैम, पॉइंट डिसाइड किया कन्वर्ज होने के लिए। जैसे ही कॉर्डन लगता है तो कई बार पैनिक करके वो फायर ओपन कर देते हैं। अच्छा, ओके। इनिशियल कॉर्डन ले हो रहा है, फौज की हरकत दिखाई देती है, दे गेट टू नो कि फौज आ गई है, एंड है तो ह्यूमन ही आफ्टर ऑल। हाँ जी, करेक्ट मैम, human एब्सोल्युटली। tendency सो है। पैनिक होके भागने के चक्कर में दे ओपन फायर, एंड द मोमेंट दे ओपन फायर उनकी लोकेशन पता चल जाता है। आइडेंटिफाई हो जाती है, तो उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को रीएडजस्ट करना इजी हो जाता है। वी आर ईगरली वेटिंग फॉर द फर्स्ट लाइट टू हैपन। थैंकफुली मैम फर्स्ट लाइट हुआ एंड दे कुडंट एस्केप। द मोमेंट फर्स्ट लाइट हैपेंड, we realized that there were 2 ancillary structures, big houses. One was under construction and one was already constructed. Next to that place? In that, in the same area? inside the cordon, ma'am. Okay. So they both were, उनके बीच में पतली सी गली बनती थी। Okay. इधर एक घर था, इधर भी घर था, तो बीच में पतली सी गली बन जाती थी उनके। They were got hold up there because of the enormity of the houses. वो सारा फायर वो घर में रुक जाता था, and there was no effective fire. We decided कि there's no choice but to physically go in when we are aware they are hardcore militants, well equipped, they have armor piercing bullets. So we briefed our buddies कि भाई तेरा काम सिर्फ इतना है, you have to hold the shield intact. Tight. Because those shields are very heavy. Yes. 30, yes. 40, 50 kgs Correct. की shields होती हैं ना। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, you cannot hold that shield above your knee for more than 2-3 minutes. The moment तुम्हारे यहाँ से shield छूट गई, all 4 of us probably will be dead or hit. I tried looking inside the gully with a little peep inside, and I could instantly see 2 people standing there. So the moment I saw him, that was the first time my experience ki itni pass se you see that and that eyeball to eyeball contact. He's just hardly 10 meters from us. I had to about to start my fire and shifted inside. I could literally see him throwing something towards me. But it was too late to react, obviously, ma'am. He lobbed a grenade towards me, sitting बैठे ही, मैम। Grenade का जैसा हमें पता होता है, grenade से killing radius is 50 meters, and we were 10 meters short of him. We were firing. The grenade also blasted at the same time. It was all dust all around, all this. Entire dust settled down. So when I peeped inside, so both the guys were on the ground, left and right. मैं क्या हुआ? बस आपको blood आ रहा है आँख के पास में. By the time I put my hand on my left eye, my entire hand was soaked in blood. Okay. I was hit, ma'am, in my left eyelid. A splinter came hitting yes, you? ma'am. Oh my God. So a splinter got hit on my left eye. Okay. And later I was told that the 2 splinters, metal pieces, had been lodged inside my eye and they will remain there. So eye department के जो head of the department, the first expression that he gives me, that you are one lucky chap. Jai Hind and welcome to She Slays, yet another episode of Valor and Courage. They say that some people live for themselves, some live for their families, but there are some selected few who live for the 1.4 billion people of this country called India. I would like to welcome Major Abhishek Singh Shaurya Chakra. Thank you so much. जिनको शौर्य चक्रा नवाजा गया था फॉर एन ऑपरेशन ज़ियो इन साउथ कश्मीर, जिसके बारे में हम जानेंगे इन अ वाइल, एंड विल टॉक अ लॉट अबाउट हिज लाइफ. What is his inspiration to join the Indian Army and the life beyond? So let's start with Major Abhishek Singh Shaurya Chakra. Abhishek, welcome to the studio. It's my honor and a privilege to have you sitting with me here today to talk about the valor stories which you actually lived. So let's start with your life. Let's start with your childhood. आप मुझे ये बताइए अभिषेक, क्या ऐसी आपकी जर्नी थी जिसने आपको ऑलिव ग्रीन में ला दिया? So first of all, ma'am, thank you so much for giving me this opportunity It's a privilege to have been
to sit here and interact with you, ma'am. I'm Major Abhishek Singh, ma'am. I belong to 4th Mechanized Infantry Battalion, 1st Sikh. As आपने पूछा मैम मेरी अर्ली लाइफ और जर्नी के बारे में मैम, सो मैं बिलोंग करता हूँ उत्तर प्रदेश के एक डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से, और बहुत ही हम्बल फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ मैम. मेरे फादर एक फार्मर हैं और मेरी मदर इज़ अ होम मेकर मैम. मैम इंस्पिरेशन, सो जैसे कि हम जानते हैं मैम, नॉर्मली जो फैमिलीज मतलब टीयर 2 सिटीज़, टीयर 3 सिटीज़ में ज़्यादातर लोगों का सपना ज्वाइन करना या तो आईटीज़ में, मेडिकल फील्ड में, या बहुत सारे फील्ड्स में बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं. और मेरे साथ स्पेशली मैम मेरे बैकग्राउंड में ऐसा कुछ नहीं है. मेरे फैमिली में कोई नो मैम. सो देयर इज नोबडी इन माय फैमिली who was earlier serving in armed forces or currently serving. So you're the first one from your family. Correct, ma'am. Wow, so wonderful. I'm the first one from my family as of today also that are serving in the armed forces, ma'am. Okay. And I have done my schooling Lakhimpur Kheri se, ma'am, St. Don Bosco School, and then my college also from Kanpur University. I did my graduation and then appeared through CDS exam and was fortunate enough to join Officers Training Academy, Chennai. Got passed out from 2014, मैम. इंस्पिरेशन के तौर पे मैम थोड़ी सी लिटिल इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट प्लीज वी वुड लव टू नो दैट. या सो मैम सबसे पहला तो मैम आई वुड लाइक टू जस्ट ब्रिंग आउट दिस अपॉर्चुनिटी मैम. आई बिलोंग टू हम सेटल्ड लखीमपुर खीरी में है मैम, बिकॉज माई ग्रैंडफादर हैड हिज जॉब लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में. तो हम गाँव से मूव हुए इन अर्ली 70s लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में मैम. हमारा जो पेरेंटल डिस्ट्रिक्ट है वो है सीतापुर. एंड आई हैपन टू बी वेरी क्लोज, जो हमारा गांव है जो कैप्टन मनोज पांडे परमवीर चक्र हैं, उनके गांव से बहुत नजदीक हमारा गांव है. सो आई फील माई इंस्पिरेशन, माई स्ट्रेंथ, जो भी मैं आज हूँ, इसमें बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इनडायरेक्टली मुझे कभी मौका नहीं मिला अनफॉर्चुनेटली उनसे कभी मिलने का, बट आई सी हिम एज माई इंस्पिरेशन, और अभी तक भी और आगे भी मैम. सो मैं बहुत छोटा था जब कारगिल कॉन्फ्लिक्ट हैड हैपन, एंड बहुत फेंट मेमोरीज अभी तो हैं मेरी उसकी, बट दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई थिंक जो इंसेप्शन था कि आर्मी के बारे में जानने का और उसके बारे में और होने का, और स्लोली डेवलपिंग, choosing it as a career option, ma'am. Correct. So during Kargil conflict, मैं जब कैप्टन मनोज पांडे जी शहीद हुए एंड उनका पार्थिव शरीर लखनऊ लाया गया, उस समय जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री थे उस समय तत्कालीन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो लखनऊ के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे. करेक्ट. सो उस समय डिफेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री, बहुत सारे और बड़े डिग्निटरीज गांव आए, उनकी फैमिली को फेलिसिटेट किया. एंड उस समय में इतना टीवी और वो नहीं था, तो समाचार और न्यूज का हमारा मेन सोर्स या तो रेडियो, और हमारे गांव में सिर्फ एक टीवी होती थी मैम जो हमारे घर में थी, ब्लैक एंड व्हाइट वाली, वो सोलर वाली. तो उस पे हम देखते थे न्यूज, और या तो फिर जो 2 दिन के बाद एक न्यूज़पेपर आता था मेन हमारे तक पहुंचता था, तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत अगर पढ़ सकते हैं. तो जो मेरा पहला इम्प्रेशन था आर्मी को लेकर कि कोई कैप्टन मनोज पांडे नाम के कोई अफसर थे शूरवीर, जो कारगिल वॉर के दौरान शहीद हुए हैं, और हमारे घर के पास थे मैम. तो सबको जनरली खबर गांव में आसपास बहुत जल्दी फैल जाती है कि ऐसे करके एक इंसिडेंट हुआ है. करेक्ट. और जब ये पता चला लोगों से कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं और रक्षा मंत्री आ रहे हैं, बहुत सारे डिग्निटरीज आ रहे हैं, बहुत सारे लोग, तो पहली चीज़ मेरे दिल में जो ये आई कि मतलब ऐसा कौन है और उसने ऐसा क्या बड़ा काम किया है कि जिसके लिए प्रधानमंत्री और इतने बड़े डिग्निटरी स्वयं एक छोटे से गांव में उनको उनके लास्ट राइट्स के लिए आए हैं, रिस्पेक्ट पे करने आए हैं, उनके पेरेंट्स से मिल रहे हैं, फैमिली से मिल रहे हैं. सो मेरा पहला एक यू कैन से दैट्स फर्स्ट स्पार्क दैट आई गॉट. एंड उसके बाद से मैंने थोड़े उनके गांव गया. उसके बाद तब तक मैं गांव गया उनके. मैं पहले तो आता रहता लेकिन इतना ज़्यादा पता नहीं था, क्योंकि वो बहुत पास में गांव है, तो ऐसे ही पासिंग मूवमेंट के दौरान. बट मैं उसके बाद स्पेसिफिकली अपने फादर को बोल के गांव गया एक आध बार, और धीरे धीरे मुझे उनके बारे में थोड़ा सा और जानने का मौका मिला. फिर स्कूल की पढ़ाई के दौरान जो भी मैं उनसे और जान पाया, उनके बारे में पता कर पाया, और जितना उनके बारे में मैं जानता रहा, पता करता रहा, उतना ही
मतलब मेरा इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन बढ़ती गई। और मेरा दैट लव फॉर आर्मी और द रिस्पेक्ट वो धीरे धीरे इंक्रीज होती रही और स्लोली इट डेवलप्ड इनटू अ पैशन कि नहीं अभी मेरे को भी आर्मी ही ज्वाइन करनी है कम वॉट में। सो आई वाज इन क्लास 6th और 7th मैम जब आई हैड फाइनली डिसाइडेड कि मुझे आर्मी ही ज्वाइन करनी है और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। कितने ऐसे 6th और 7th के बच्चे होंगे आज यस मैम जिन्होंने ये ठान लिया है कि मुझे फौज ज्वाइन करनी है? आई वुड लव टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू कितने ऐसे बच्चे हैं वहां पे जो आज सोचते हैं इन द ग्रेड 6 and 7 कि हमें फौज ज्वाइन करनी है? सो डू राइट इन द कमेंट्स। सो आपने बोला कि आप 4th मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और 1st सिख रेजिमेंट से बिलोंग करते yes हैं, ma'am द ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। सो व्हाई इज दिस रेजिमेंट been given this term of bravest of the braves? For sure they are the highest awardees जो हैं आपके रेजिमेंट को बिलोंग करते हैं। yes ma'am It has a great history yes ma'am and I think आपके लिए जो इंस्पिरेशन है वो लाइफ लॉन्ग आगे बढ़ती चली गई होगी once you join. yes So please मुझे आप पहले अपनी यूनिट के बारे में थोड़ा बताइए. What exactly is a mechanized infantry? We all know पैदल सेना. yes We ma'am all know infantry. We as in, of course, the audience as well. What is a mechanized infantry and why was it created? मैम सो मैम जैसे कि आपने बताया कि मैं 4th मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन 1st सिख से बिलोंग करता हूँ जो कि एक पहले एक रेगुलर इन्फेंट्री बटालियन होती थी 1st सिख और लेटर पार्ट ऑफ द 70s उसको कन्वर्ट किया गया जरूरत को ध्यान में रखते हुए एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री बटालियन में. Okay. And why the title Bravest of the Brave? What is behind that yes title? ma'am so I'll come to that ma'am just so 1846 के onwards जितने भी मेन लड़ाइयाँ हुई हैं इंक्लूडिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पलटन ने हिस्सा लिया और बहुत नाम कमाया. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हमारे जो एक सिपाही थे लांस नायक जमेदार नंद सिंह उनको विक्टोरिया क्रॉस से नवाजा गया जो कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड माना जाता था जिसके इक्विवेलेंट अभी हमारी सेना में परमवीर चक्र है. करेक्ट. विद 1947 मैम जैसे ही वी नो कि हमारा पार्टीशन हुआ देश का एंड उस समय बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्य थे इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर और जूनागढ़ हैदराबाद जिन्होंने डिसाइड किया या जो डिसाइड नहीं कर पाए थे इनिशियली कि हमें किसके साथ जाना है प्रिंसली स्टेट्स बेसिकली उसमें महाराजा हरी सिंह जो कश्मीर के महाराजा थे उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक अलग राज्य के रूप में ही फंक्शन करेंगे जिसमें भारतीय राज्य को कोई परेशानी नहीं थी. बट जैसे ये प्रोसेस कंप्लीट हो रहा था पाकिस्तान ने अपने रेडर्स भेज के कबायली भेज के फोर्सफुली कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की अक्टूबर के महीने में तकरीबन 47 में. सो तकरीबन 20-22 अक्टूबर को महाराजा रणजीत सिंह ने हेल्प के लिए भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन को पंडित जवाहरलाल नेहरू को अप्रोच किया और कि रेडर से कश्मीर को बचाया जाए. और 27 अक्टूबर 1947 को 26 अक्टूबर को एक दिन पहले उसके ट्रीटी ऑफ एनेक्सेशन साइन हुई जो महाराजा रणजीत सिंह ने साइन की. उसके बाद ऑफिशियली कश्मीर भारत का हिस्सा बन चुका था. सो अब उसको बचाना भारत की जिम्मेदारी है. सो 27 अक्टूबर 1947 को फर्स्ट सिख बटालियन जो कि मेरी बटालियन है वो पहली बटालियन थी जिसको पालम एयरफील्ड दिल्ली से एयरलिफ्ट किया गया. दैट वन ऑफ अ काइंड मैम जो किसी इन्फेंट्री बटालियन या ट्रूप को एयरलिफ्ट किया गया था मैम. एंड देन दे लैंडेड इन द ओल्ड एयरफील्ड श्रीनगर. एंड आज भी हम उसके नाम पर 27 अक्टूबर के नाम पर आज भी भारतीय सेना में इन्फेंट्री डे मनाया जाता है और शौर्य दिवस मनाया जाता है. और इसीलिए आपको सेवियर्स ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है मैम. सो पंडित जवाहरलाल I have goosebumps when you're speaking. Amazing. So पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस उपलक्ष्य में हमारी बटालियन को ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव बाद में और पहले सेवियर्स ऑफ कश्मीर के नाम से नवाजा मैम. बहुत बढ़िया. और 1947-48 का जो युद्ध पूरा चला मैम उसमें जो हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वहां पर पहुंचने के बाद उसमें हमारा जो टास्क दिया गया था हमारी बटालियन को टू सेफगार्ड दी ओल्ड एयरफील्ड सो दैट हम सप्लाईज लगातार पहुंचती रहे और ओल्ड एयरफील्ड कॉम्प्रोमाइज ना हो. लेकिन जो हमारे पहले सीईओ थे लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय उन्होंने ये अप्रिशिएट किया कि अगर हम एयरफील्ड पे रहेंगे तो रेडर्स
श्रीनगर तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद उनको निकालना मुश्किल हो जाएगा। सो उन्होंने अपने ही इनिशिएटिव पे ये डिसाइड किया कि हम बारामूला की तरफ एडवांस करेंगे और ट्रेडर्स को दूर से दूर रोकने की कोशिश करेंगे ताकि वो श्रीनगर तक ना पहुंच पाए। और इस एक्सरसाइज में वो वीर गति को प्राप्त हुए एंड सीओ लेड फ्रॉम द फ्रंट एंड ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू मेक द सुप्रीम सैक्रिफाइस मैम। एंड उसके बाद उन्हें भारतीय इतिहास में स्वतंत्र भारत के पहले महावीर चक्र के रूप में सम्मानित किया गया मैम। बहुत उम्दा। एक्चुअली हम जब बात करते हैं इंडियन आर्मी के, अभिषेक, लीडरशिप एक वर्ड जो है ये उभर के आता है हमेशा। बिल्कुल मैम। आई थिंक विदाउट दिस टर्म इंडियन आर्मी इज इनकम्प्लीट। आपके लिए लीडरशिप का क्या मतलब है, क्या महत्व है एज अ लीडर योरसेल्फ एट द स्टेज दैट यू आर? यस मैम। एंड जो आपने लीडरशिप देखी है अपने साथ, आपके सीनियर्स, यस मैम, आपके लिए लीडरशिप का क्या महत्व है इन योर लाइफ? सो मैम, जैसे कि मैंने आपको बताया एक बहुत छोटा सा अभी रिसेंट कि हम अपनी लीडरशिप का जो इंस्पिरेशन डिराइव कर रहे हैं वो ऐसे लोगों से, अपने हम जिनको हम बुजुर्ग बोलते हैं अपनी सेना की भाषा में, हमारे पूर्वज हैं जो जिन्होंने सेना में अपना काम किया है, जो लॉरेंस लिए हैं, सो गाथा जो हमने सुनी है। हम अपना लीडरशिप ले रहे हैं कैसे? लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय जैसे ऑफिसर से, जो बटालियन के सीओ थे, जिनको एक स्पेसिफिक टास्क दिया गया था, बट उन्होंने खुद अप्रिशिएट एंड ही लेड फ्रॉम द फ्रंट एंड he was the first person to make the supreme sacrifice leading from the front. So I think that summarizes कि leadership actually मैम क्या होती है और आर्मी के अंदर leadership more importantly कैसे होती है। Correct. So Indian Army is an officer-led army mostly मैम। So कभी भी जहाँ पर भी ऐसा खतरा होता है, हमारी ये बेसिक सिखलाई है जहाँ पर हमें सिखाया जाता है, शुरू से हमारे नसों में भर दिया जाता है ट्रेनिंग के टाइम से ही, कि जितने भी खतरे हैं, जितने भी मुश्किलें हैं, उसको पहले ऑफिसर ने फेस करना होता है और ऑफिसर ने उसको पहले समझना होता है, उसके बाद कि वो खतरा हमारे जवानों तक पहुंचे या जाए। बहुत बढ़िया। सो वो स्टाइल ऑफ लीडरशिप इंडियन आर्मी आपको सिखाती है, वैसे ग्रूम करती है। और इसी का उदाहरण है कि बहुत सारे ऑफिसर्स, चाहे जिनकी मैंने बात की कैप्टन मनोज पांडे, जो वो जुबार टॉप पे कारगिल वॉर के टाइम में भी उन्होंने अपने जवानों को पीछे भेजा, जिनको लीड कर रहे थे, वो खुद आगे गए, उन्होंने खुद पहले गोली खाई, सुप्रीम सैक्रिफाइस मेड किया एंड he ensured कि पीछे से, ताकि जो उनके जो ट्रूप्स हैं वो आसानी से जुबार टॉप को कैप्चर कर सके। So what an inspiration you have in life, अभिषेक, क्योंकि ऐसी इंस्पिरेशन अगर हर एक यंगस्टर अपनी लाइफ में अगर बना ले, मेंटर बना ले अपनी लाइफ में, कोई इस टाइप की इंस्पिरेशन वाला बंदा, yes ma'am, I don't think the youth will ever go astray. कभी किसी गलत रास्ते पे जाने का उनका कोई मतलब बनेगा ही नहीं लाइफ में, you know. So it is so important to choose your inspiration correct from a very younger age, which you did. Absolutely. And you know, जैसे हम करेज की बात करते हैं अभिषेक, we talk of courage as कि जहाँ फियर नहीं है वहाँ पे करेज है, ऐसा बोला जाता है, it's absence of fear. Yes ma'am. But उसी फियर के साथ आग में, you know, अपने आप को literally ले जाना, going into the fire with that fear. Yes ma'am. Let's talk a little of that. आपको शौर्य चक्र से नवाजा गया for an act of gallantry, जो आपने साउथ कश्मीर में you showed. Yes ma'am. And it was Operation Zio. Yes ma'am. And I would like to know a little bit more, जितना आप कैमरा पे बता सकते हैं, of this operation. Please tell our viewers about ये पूरा ऑपरेशन क्या था जिसके लिए आपको चूज किया गया to be conferred upon with the शौर्य चक्र। Yes ma'am. So ma'am, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं इनिशियल कमीशन होने के बाद सबसे पहला मैं जैसलमेर गया फर्स्ट पोस्टिंग में। वहाँ से वी सर्व्ड इन लद्दाख विद माय पल्टन। वहाँ से हम वापस हरियाणा आए। उसके बाद मेरी पोस्टिंग, पहली आउटिंग जो हमारी होती है मैम, जिसको हम ERE भी बोलते हैं। आउटिंग इन अ नॉर्मल टर्म इज लाइक गोइंग फॉर अ वेकेशन। नहीं, नॉट आउटिंग इन द सेंस मैम कि जब भी ऑन द लाइटर साइड। हाँ जी हाँ। सो आफ्टर जब आप कमीशन होते हो तो आपका इनिशियल सर्विस आपको अपनी पलटन के अंदर करनी पड़ती है, अपनी बटालियन के अंदर करनी पड़ती है। और जब आप एक परिपक्व सैनिक की तरह या ऑफिसर के लिए तैयार हो जाते हैं, तब सेना आपको पहला मौका देती है अपनी पलटन से बाहर जाकर कुछ अपॉर्चुनिटीज में, कुछ एक्सपोजर के तौर पर आपको सर्व करने का, ताकि आपको बाहर की सेना, तब तक आपने अपनी पलटन देखी होती हैं, अपने ट्रूप्स देखे होते हैं, अपने ऑफिसर्स देखे होते हैं। यस मैम, जैसे कि बच्चा पहली बार पढ़ के बाहर जाता है और दुनिया देखता है, उसी तरीके से एक पहला एक्सपोजर होता है आपके लिए कि आप बाहर जाएं, बाकी सेना कैसे काम कर रही है, बाकी ट्रूप्स कैसे काम कर रहे हैं, फील्ड में अगर आप हैं, इन एक्शन आप देखें, इन एक्शन क्या होती है। यस मैम। सो आपको एक्चुअली पता लगे कि बाकी की सेना भी
कैसे काम करती है, आपका एक्सपोजर थोड़ा होराइजन बढ़े, आप और सीखें और कुछ अच्छी सीखें जो आप वहां से लेते हैं, जब आप वापस आएं तो आप उन सीखों को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर सकें और बेहतरी के लिए काम कर सकें। सो एक वो जो मेरी पहली आउट पोस्टिंग थी जिसके लिए मैं मूव किया, और मुझे मौका मिला मैम 50 RR 50 राष्ट्रीय राइफल्स में जाने का, जो कि कुमाऊं की RR है। मैम हर राष्ट्रीय राइफल्स की जो बटालियन है वो हर रेजिमेंट, कुछ रेजिमेंट से एफिलिएटेड है। सो हर रेजिमेंट जो भारतीय सेना के अंदर है उनकी कुछ एफिलिएटेड राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन है। दिस इज कुमाऊं रेजिमेंट। सो जिस RR में मैं गया था 50 राष्ट्रीय राइफल्स, उसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है, उसकी अपनी हिस्ट्री है मैम, और वो कुमाऊं रेजिमेंट से एफिलिएटेड है मैम। सो एंड कुमाऊं रेजिमेंट भी इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स ऑफ द आर्मी। सो मेरे लिए एक और नया चैलेंज एंड न्यू लर्निंग। आई वाज वेरी लकी मैम, वेरी फॉर्चुनेट मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने आप को इसलिए लकी महसूस हो रहा था मैम बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया मेरा कोई प्रीवियस एक्सपोजर नहीं था आर्मी का। सो हम टीवी में देख के, मूवीज में देख के जो हम देखते हैं कि आर्मी ये करती है, लड़ाई में जाती है, ऑपरेशंस करती है, यही मेरा एक्सपोजर था। सो एज पार्ट ऑफ पलटन जब आप सीख रहे हैं आपको ऐसा मौका थोड़ा कम मिलता है। बहुत कम है जिनको ऑपरेशन में जाने का मौका मिलता है। सो मुझे ये मौका मिला, इसलिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, खुश था कि मुझे फील्ड में जाने का मौका मिल रहा है, दैट टू इन साउथ कश्मीर। हम जानते हैं मैम कश्मीर के हालात पिछले से थोड़े से अभी कुछ सालों में बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गए हैं मैम, बट कुछ सालों पहले तक यस मैम। सो कैसे हैं, एक्टिव एरियाज हैं, ऑपरेशंस, एक्टिव ऑपरेशंस वहाँ काफी फ्रीक्वेंटली होते रहते हैं। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट कि मुझे 50 राष्ट्रीय राइफल्स में जाने का मौका मिला है, विच वाज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ पुलवामा। ओके। सो अगेन पुलवामा का नाम सुनते ही आप फिजिकली गए नहीं हो, सो मैं फाइनली मैम पहुंचा वहां पर। सो आई लैंडेड अप देयर, सर्व्ड देयर फॉर वन, एंड जस्ट द इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ जनवरी में मैं पोस्टिंग गया था मैम, एंड I was serving in deserts till then मैम। अच्छा, ओके। So जब मेरी फर्स्ट फ्लाइट हुई, मैं श्रीनगर लैंड हुआ, तो विद इन स्पैन ऑफ 3 days from deserts I landed in Srinagar airport and it was all covered with snow. Oh God. So that was the first shock day कि मैं 3 दिन के अंदर अभी कहाँ से था और कहाँ पहुँच गया। Okay. So then मैम it went on, चलता रहा। Okay. And while I was being driven to my battalion from airport, जो मेरा ड्राइवर था मेरे साथ में, जो मुझे रिसीव करने के लिए आया था, he showed me actually the place। जब हम वहाँ से निकल रहे थे मेन हाईवे से, NH1 से, उसने गाड़ी को थोड़ा स्लो किया, मैंने उससे पूछा क्या हो गया, बोला साहब ये वो जगह है जहाँ पर पुलवामा ब्लास्ट हुआ था। This is exactly the same place. What went through your mind that time? So my first this thing मैम, जैसे हम बोलते हैं ना कि that the first goosebump moment कि I could sense that place, looking left and right. Then मैम यूनिट में गया, फिर we served there for almost a year. मैम 2022 में लगभग 1 साल जब मैंने ऑलरेडी सर्व कर लिया था वहाँ पर, 6 जनवरी 2022 को हमें एक पुलिस की तरफ से एक इनपुट मिला कि एक गांव है नजदीकी जहाँ पर 3 आतंकवादी छुपे हुए हैं, जिसमें 2 पाकिस्तानी आतंकवादी जिनको आम भाषा में फॉरेन टेररिस्ट बोलते हैं, FTs बोलते हैं, और एक लोकल एरिया कमांडर जो कि जैश ए मोहम्मद, जो लोकल कश्मीरी था मैम, बट जैश ए मोहम्मद जो आउटफिट है उसका लोकल कमांडर था। सो हमें ये बताया गया कि खबर मिली कि ऐसा गांव है, उसके अंदर एक घर के अंदर कुछ लोग छुपे हुए हैं, एंड तकरीबन शाम के 5 बजे का टाइम था। हमने प्लान आउट किया उस ऑपरेशन को। उसमें क्रिटिकलिटी थोड़ी थी बिकॉज मैम जो जनरल इलाका है, श्रीनगर के फ्रिंजेस हैं थोड़े से, तो डेंसली पॉपुलेटेड है, अनलाइक जो हम कश्मीर की हम बात करते हैं, सुनते हैं, तो हमें लगता है कि वादियां हैं, पहाड़ हैं, पहला थॉट वही आता है, पहाड़ हैं, बर्फ है, बट दिस इज द वैली मैम, in main Kashmir valley. So mostly plains, all thickly populated, densely populated, and semi-urban kind of a setup ma'am, in the fringes of Srinagar. Okay. So वहाँ का ये गांव था मैम। So critically ये थी कि मैम because भीड़ भाड़ का इलाका ज्यादा है, श्रीनगर से वेल कनेक्टेड है, एंड शाम का टाइम है जब हम जानते हैं कि लोग अपने घरों से नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं, या नमाज पढ़ के वापस आ रहे होते हैं, करेक्ट, लोग अपने घरों का सामान लेने के लिए बाहर जा रहे होते हैं, तो भीड़ का टाइम होता है, और ऐसे जगह पर सरप्राइज मेंटेन करना ऑपरेशन का सबसे मुश्किल होता है, वेरी डिफिकल्ट, करेक्ट। सो हमने डिसाइड किया कि हम सरप्राइज को मेंटेन रखने के लिए हम अपनी जो फौजी गाड़ियां हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे,
Okay. और हम रादर सिविल गाड़ियां का इस्तेमाल करेंगे और हम भी खुद भी सिविल Local अटायर में थोड़ा सा वेशभूषा में जाएंगे. में चेंज करके थोड़े से, ताकि लोग अगर हम रास्ते में हमें देखें, क्योंकि तकरीबन हमें हमारी कंपनी ऑपरेटिंग बेस से जहाँ से हम निकल रहे थे और हमें जहाँ पर जाना था वो तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर का दूरी था. तो वो 10 किलोमीटर का ट्रैवल में थोड़ा टाइम लगता था और वहाँ पर सरप्राइज मेंटेन इज द टॉप प्रायोरिटी. Anybody could have spotted. यस मैम. एंड आपका ऑपरेशन इजीली कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. Correct. सो हमने डिसाइड किया हम 6 अलग अलग गाड़ियां इस्तेमाल करेंगे. Okay. ऑल 6 व्हीकल्स लेड बाय द कंपनी कमांडर्स, लेड बाय एन ऑफिसर. अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि Leadership. हर जगह पर जो From the front. फ्रॉम द फ्रंट है मैम. Yes, जो yes. पहला खतरा, जो पहला सिचुएशन फेस करनी है, वो हमेशा भारतीय सेना में ये सिखाती है कि पहले ऑफिसर फेस करेगा. वट एवर द फर्स्ट बुलेट फ्लाइज टुवर्ड्स यू विल बी टेकन बाय एन ऑफिसर. Wow. सो दैट वाज द आइडिया बिहाइंड इट मैम. एंड जो हमारी क्यूआरटीज होती हैं मैम, सो दे आर हमारी कंपनी में जो टीम्स होती हैं उनको ऐसे बांटा जाता है कि एक ऑफिसर की क्यूआरटी होती है. QRT is a quick reaction team. Okay. यस मैम. इसका रोल बता दीजिए छोटा सा आप. QRT क्या होती है? क्यूआरटी मैम एक छोटी टुकड़ी होती है जिसको इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो कम से कम समय में किसी भी सिचुएशन के लिए रिएक्ट कर सके. सो अगर कोई सिचुएशन आपको पोज की जाती है, आपको अचानक से पता चलता है कि यहाँ पर कोई चीज है जहाँ पर आपको पहुंचने की जरूरत है या आपको रिएक्ट करने की जरूरत है, तो क्यूआरटीज को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है, उनको कॉम्पोजिशन का इस हिसाब से बनाया जाता है, उनको इक्विप इस हिसाब से किया जाता है कि वो मिनिमम टाइम फ्रेम के अंदर फास्टेस्ट पॉसिबल मैनर में उस जगह पर पहुंच सकें और रिएक्ट कर सकें. सो जो हमारी क्यूआरटीज थी, हमने 6 क्यूआरटीज बनाई जो सारे ऑफिसर से लेड थी. 6 गाड़ियां हमने अरेंज की, जो कि हम नॉर्मल देखते हैं जो पीछे से ओपन लोड कैरियर्स होते हैं, छोटे लोड कैरियर्स होते हैं, मिनी ट्रक्स जो होते मिनी हैं. ट्रक्स में बेसिकली वी आर कवर्ड इन फेरन्स. And you must be having all Yes, beard ma'am. and everything, Yes, like ma'am. a थोड़ा सा typical local Kashmiri look. Yes, ma'am. Correct. तो डिस्गाइज लुक होता है मैम. वहां से हमने स्टार्ट किया प्लान करके. एंड टू मेंटेन सरप्राइज हमने डिसाइड किया कि हम एक रूट से नहीं जाएंगे ताकि सारी 6 गाड़ियां एक साथ चलती ना दिखाई दें, ताकि किसी को सस्पिशन ना हो. हमने अलग रूट्स फॉलो किए एंड हम फाइनली एक जगह पर हमने एक पॉइंट डिसाइड किया कन्वर्ज होने के लिए कि सारी गाड़ियां अलग अलग रूट से जाएंगी. फिर हम फाइनली एक जगह पर कन्वर्ज होंगे उस गांव से जस्ट पहले, और हम ताकि मैक्सिमम सरप्राइज मेंटेन करें और मिनिमम रिएक्शन टाइम हो अगर किसी को पता भी चलता है हमारे बारे में. तो हम फाइनली कन्वर्ज हुए एक जगह पर एंड देन वी सडनली डिसमाउंटेड. और वो वहां पर अचानक से लोग एकदम से गाड़ियों से उतर रहे हैं. सिविल गाड़ियां हैं, सारी गाड़ियां. जब तक गांव वालों को समझ में आया कि क्या हो रहा है, मतलब सिविल गाड़ियों से लोग उतर रहे हैं, ऑब्वियसली फौजीज हैं सारे, एवरीबॉडी हैज वेपन्स, दे अंडरस्टूड. सो दे अंडरस्टूड हो रहा है, बट द रिएक्शन एम वाज अचीव्ड बिकॉज रिएक्शन टाइम तब नहीं रह जाता आपके पास. इवन अगर आप किसी को इन्फॉर्म का कोई इन्फॉर्मर भी है, अगर उस बंदे को इन्फॉर्म भी करना चाहता है, बाय द टाइम ही इन्फॉर्म्स, हमारा जो इनिशियल कॉर्डन होता है इट इज इन प्लेस. करेक्ट. सो थैंकफुली मैम द इनिशियल कॉर्डन वाज प्लेस्ड लेस देन अ मिनट के अंदर हमारा पहला कॉर्डन प्लेस हो गया था. सो वी हैड दिस थिंग कि इफ समबडी इज स्ट्रक इनसाइड एंड अगर इनपुट अच्छी थी तो लोग बाहर तो नहीं निकल सकते अभी इजीली. कॉर्डन आपने कर लिया था हो गया था उस एरिया को. इनिशियल कॉर्डन हमने ले कर दिया था मैम. एंड देन एन आउटर कॉर्डन होता है जिसमें हम जनरली सीआरपीएफ को और पुलिस को रखते हैं. इट इज ऑलवेज अ जॉइंट ऑपरेशन जिसमें सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड पुलिस they all come together. They all come together. Correct. And we fight together. तो कश्मीर की अगेन ये खूबसूरती है, it is very important because सारी फोर्सेस आर कॉम्प्लीमेंटिंग एक दूसरे का काम. तो ऐसा नहीं है कि अकेले ही को आप काम कर रहे हो या आप कर लोगे. हर काम को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपके लिए साथ में द अदर फोर्सेस. जैसे सीआरपीएफ के बारे में मैंने आपको बताया कि सीआरपीएफ आउटर टियर में होती है बिकॉज ऐसी सिचुएशंस में कश्मीर में भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, लोग नारेबाजी स्टार्ट कर देते हैं. सो उनके अंदर के जो लोग हैं वो आ जाते हैं. करेक्ट. सो दे ट्राई टू क्रिएट अ सिचुएशन जो ऑपरेशन को हैम्पर कर सकती है एंड दिस विल फैसिलिटेट जो लोग अंदर हैं उनको भागने में, एस्केप. करेक्ट. एंड सीआरपीएफ एज वी आर अवेयर दे आर ट्रेन्ड इन द मॉब कंट्रोल मैम. सो दे आर स्पेशली ट्रेन्ड इन दीज टास्क. सो दे हैव द मॉब कंट्रोल इक्विपमेंट एवरीथिंग. सो उनका काम बाहर में ये रहता है कि जनरली दे आर, उनकी एक टीम होती है हमारे ऑपरेशन का हिस्सा, बाकी मेजॉरिटी ऑफ देम आर इकट्ठा नहीं होने देना, डिस्पर्स करते रहना लगातार, सो दैट कोई एक ऐसी अनफोर्सेन सिचुएशन क्रिएट ना कर पाए. पुलिस हमारे बीच में एक इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बीइंग द लोकल दिस थिंग. दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, दे अंडरस्टैंड हाउ डू वी कनेक्ट विद देम. द लोकल कस्टम्स भी धीरे धीरे हमें, तो पुलिस हमें उसमें थोड़ा सा हेल्प करती है टू कम्युनिकेट विद पीपल, टू इंटरोगेट विद पीपल. थोड़ा सा एक वो रहता है मैम.
So we initially ate the cordon and around 7:38 तक इनिशियल कॉर्डन हो गया था मैम इन द इवनिंग एंड इनिशियल 7:38 in the in the evening. तो evening, फिर ma'am. तो अंधेरा भी काफी हो अंधेरा चुका मैम होगा उस वहाँ टाइम पर तक. सर्दियों के टाइम में एज इट इज अंधेरा Early हो अराउंड जाता है. 5:36 तक अंधेरा हो जाता है मैम. तो अंधेरा हो गया था ऑलरेडी मैम एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर फायर फाइट होगी एंड एज एज अ नॉर्मल दिस थिंग मैम वहाँ पर जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस था और हमारा जो ओवरऑल कलेक्टिव एक्सपीरियंस एज आर बटालियन भी हमारा जो रहता है वो जनरली जो टेररिस्ट होते हैं मैम जैसे ही कॉर्डन लगता है तो कई बार पैनिक करके वो फायर ओपन कर देते हैं. अच्छा, ओके. इनिशियल कॉर्डन ले हो रहा है, फौज की हरकत दिखाई देती है, दे गेट टू नो कि फौज आ गई है एंड है तो ह्यूमन ही आफ्टर ऑल. हाँ जी करेक्ट मैम human एब्सोल्युटली. tendency सो है. पैनिक होके भागने के चक्कर में दे ओपन फायर एंड द मोमेंट दे ओपन फायर उनकी लोकेशन पता चल जाती आइडेंटिफाई है. हो जाती है तो उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को रीएडजस्ट करना ईजी हो जाता है. बट मैम जैश मोहम्मद की एक थोड़ा सा हम वहाँ पर जो हमें सिखाया जाता है कि जैश मोहम्मद जनरली दे आर मोर इंडोक्ट्रिनेटेड. उसमें थोड़ा सा वो बोलते हैं कि यार बहुत ज्यादा हार्ड वो हैं, ट्रेन्ड एंड हार्डन्ड हैं. सो जनरली जैश मोहम्मद के जितने ऑपरेशंस होते हैं जिसमें आप जनरली देखोगे कि दे हैव अ टेंडेंसी नॉट टू सरेंडर एनी टाइम. वेरी रेयर. दे वर्क इन स्मॉलर ग्रुप्स. यस मैम, दे वर्क इन स्मॉलर ग्रुप्स. जनरली उनकी टेंडेंसी नहीं होती करने की, बहुत ही ज्यादा इंडोक्ट्रिनेटेड होते हैं मैम. तो एंड दे आर वेल इक्विप्ड. सो फायर आर्म्स उनके पास अच्छी क्वांटिटी में होते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको नुकसान ना पहुंचा जाए. यहीं पर मैं आई लाइक टू ऐड मैम कि हमारा चाहे भारतीय सेना में, चाहे राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन में या कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेज ऑपरेट कर रही हैं वैली में या कहीं पर, और हमारा पहला जो प्रिंसिपल है हम इस पे काम करते हैं कि फर्स्ट प्रायोरिटी कि सिविलियन को किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. जो लोकल पॉपुलेशन वहां पर किसी को उनके कस्टम्स को उनको किसी को फिजिकल नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए. और दूसरी चीज है कि हमारे किसी बंदे को, जो हमारी टीम का बंदा है, उसको कोई चोट या किसी प्रकार की नुकसान नहीं होनी चाहिए इन द कोर्स ऑफ ऑपरेशन. करेक्ट. सो एक्सुबरेंस उसको हम थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. ईच लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. यस मैम, ईच लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. एब्सोल्युटली. सो हमें ये सिखाया जाता है कि टेररिस्ट तो जो बना है वो मरने के लिए बना है. वो आज नहीं मरेगा तो कल मरेगा. करेक्ट. आज अगर वो भाग भी गया तो कल हम उसको दोबारा पकड़ लेंगे, दोबारा उसको जहां पहुंचाना है वहां पहुंचा दिया जाएगा. बट अगर ऑपरेशन के दौरान कितना भी बड़ा ऑपरेशन हो, उसके दौरान अगर हमारे किसी एक जवान को भी चोट लग जाती है, घायल हो जाता है, वो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस होता है. इट्स अ पर्सनल लॉस. इट इज अ पर्सनल लॉस फॉर अस. यस, एब्सोल्युटली. तो हम उसको चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करते, तो हम अपना प्लानिंग वगैरह उस हिसाब से रहता है. सो हमने ट्राई किया. कॉर्डन के बाद वी स्टार्ट सर्चिंग द हाउसेज वन बाय वन. So initial 3 hours there was no movement. 3 hours. 3 hours there was no movement. This is after you have reached and married up at that place. Yes ma'am, the cordon was laid. So to our surprise there was no movement. There was no firefight. So हमें थोड़ी देर बाद रियलाइज होने लग गया था कि शायद गलत एंट मिल गई है. एंड बट देन हम अगेन हमारी जो सिखलाई है कि हम जब कॉर्डन हो जाता है तो जितने घर हैं कॉर्डन में वो सर्च तो करना ही करना है. Whether it is there, it is not there. बिना एक घर छोड़े आप कॉर्डन को क्लोज नहीं कर सकते. यू हैव टू सर्च द एंटायर क्लस्टर, गिव एन ओके कि ठीक है, नहीं इट इज ओके. सो वी हैड टू सर्च द एंटायर हाउस. सो 3 hours हैड ऑलरेडी पास्ड और अभी तक कुछ मूवमेंट हरकत नहीं हुई थी. एंड सडनली मैम अराउंड 11:30 के आसपास वी वर अबाउट टू एंटर एन हाउस जिसको हमने वहाँ पर मैम अलग अलग तरीके से हम घर को सर्च करते हैं. पहले हमने घर को इनिशियली सर्च किया, खाली कराया पहले तो पूरा क्लस्टर. सिविलियंस को बाहर निकालते हैं हम पूरे कॉर्डन से, ताकि किसी को कोई हम अनाउंस करते हैं लाउड हेलर पे कि आप लोग सभी लोग घर से बाहर आ जाएं सभी लोग, और कॉर्डन से हमको बाहर कर दिया जाता ताकि कोई भी ऐसा लोकल कुछ किसी को चोट हो, लाइक यू मेंशन्ड अर्लियर. करेक्ट मैम. सो उसमें मैम हमारे पास इसको एक चीज़ को एंश्योर, कई बार लोग सोचते हैं कि उसमें टेररिस्ट भाग सकते हैं डिस्गाइज अपने आप को सिविलियंस दिखाते हुए, और वो भी साथ में बाहर आ सकते हैं अपने आप को छुपा. बट इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज मैम हमारे वहाँ पर राष्ट्रीय राइफल्स का प्रोफेशनलिज्म इतना साउंड है. एंड अगर किसी घर को हमने खाली कराया उसके अंदर से 6 लोग बाहर निकले, छठा बाहर आया, तो वी लुक आउट डेटा कि इस घर के अंदर 5 लोग होने चाहिए. 3 मेंबर्स 2 फीमेल मेंबर्स. इनके नाम ये हैं, एज ये है, ऑक्यूपेशन ये है. तो हु इज दिस 6th गाय? सो वी इंटरोगेट द फैमिली कि भाई छठा आदमी कौन है. तो दे विल आइदर टेस्टिफाई कि हमारा कोई रिलेटिव है, आ रखा है, या ऐसे करके कोई है. They will have their identity cards कि कहाँ से आएगा आपके ऊपर के. They have to justify that. अगर ऐसा कुछ नहीं है then these become suspicious. So just to had to mention. उसके बाद में हमने सर्च करना स्टार्ट किया एंड स्लोली जब सारे लोग घर खाली हो गए एंड वी स्टार्टेड सर्चिंग एन हाउस. अचानक से जो एक घर था, एक बड़ा 3 स्टोरी घर था, उसके
कोर्टयार्ड की साइड से, नॉट फ्रॉम द हाउस, वहां से एक इनडिस्क्रिमिनेटली फायर हमारी तरफ ओपन हो गया, हमारी टीम के ऊपर ओपन हुआ. okay. एंड वी वर टोटली मतलब थोड़ा सा Taken by surprise. टेकन बाय सरप्राइज. वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, आप तो बिकॉज खाली करवा रहे थे घर, घर खाली हो चुके थे मैम, सारे घर ही. तो एज पर अस ऑल हाउसेज वर एम्प्टी. empty. तो वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से कोई फायर कर सकता है. वहां से फायर आया एंड वी वर टेकन बाय सरप्राइज. माय बडी, ऑपरेशनल बडी, ही पुल्ड मी बैक एंड वी समहाउ सर्वाइव्ड द इनिशियल, which is the most crucial and important. Yes, absolutely. अगर आप इनिशियल फायर फाइट जो है, अगर आप सर्वाइव हैं, सरप्राइज था तो it yes, could have hit anybody. So we were not taking cover proper. Yes. ठीक से कवर नहीं था, because we were about to enter the house for this physical searching that house. So thankfully we all were fine. And but इससे अच्छा ये हुआ कि मतलब we got to know कि there's somebody. सही घर पकड़ लिया हमने अभी. घर के अंदर कोई ना कोई तो है. Correct. So we reoriented ourselves and everything had happened. And then we again started the search a little more deliberately this time, because now we know that there's somebody inside, yes, and with weapons and with everything. And AK-47 का fire था, which is very much evident. तो हम सारे teams को हमने reorient किया कि यहाँ से fire आया है. And now everybody reorient himself towards, yes ma'am, and be more vigilant. अपने जितने भी stops लगाए हैं आपने, उनको थोड़ा सा vigilant रहने को बोलो. Radio set पे these things in transmitting. And then again for 3 hours there is अलल. So we kept सुबह के 2 बज चुके हैं. 1-1:30 बज गया मैम यहाँ पर. And then मतलब फायर हुआ and then again it is silence. There's a silence, complete silence. So उसके बाद again people were anticipating कि फायर करके तो नहीं भाग गया कहीं से, या उस टाइप से कुछ नहीं हो गया हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि फायर करने के बाद दोबारा फायर ही नहीं आया. And we are still searching. So anyways, we went on and we moved on to another house for a search. Okay. We physically searched the house, came outside the house, and वहाँ कश्मीर में peculiar houses हैं in the villages. होती है? Connected होते हैं through proper छोटी-छोटी गलियों के. गलियाँ होती हैं, right, correct. And most of the houses, ma'am, most of the households, they have बाहर cow sheds. in right, Kashmir में. Right, yes. तो मैक्सिमम हाउसहोल्ड्स में पोल्ट्री का भी होता है, काउस का पोल्ट्री एंड काउ शेड बाहर थोड़े से रखते हैं. छोटा सा लॉन होगा मैक्सिमम कश्मीरी हाउसेज में, एक छोटा सा काउ शेड होगा जहाँ पर वो घास वगैरह इकट्ठा करते हैं. सो देयर इज अ हे स्टैक ह्यूज आउटसाइड द हाउस. घर हमने क्लियर कर लिया था. अच्छा. सो हे स्टैक था वहाँ पर. आई टोल्ड माई, जो हमारा क्यूआरटी का जो एनसीओ होता है हमारा, नॉन कमीशन्ड ऑफिसर, हवलदार रैंक के, उनको मैंने बोला कि आप इसको हटाओ, इसको भी क्लियर करना वो करना पड़ेगा. तो वहाँ पर मैम एक अगेन इंटरेस्टिंग सिखलाई जो हमें दी जाती है मैम हमको. जब हम नए जाते हैं आरआर में, तो हमें जो ऑफिसर्स हैं, जेसीओ साहिबान हैं और जो अदर रैंक्स हैं, आप एज एन ऑफिसर जाते हो 5-6 साल की सर्विस में, तो एक तो आप यूनिट से जा रहे होते हैं, तो आपको एक ऑफिसर, आप में ऑफिसर हो, आपका इंटेलेक्ट बाकी लोगों से थोड़ा सा आपका आईक्यू शायद बेटर है, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा एम्फेसाइज करने की कोशिश करते हो, क्योंकि आप ऐसे ट्रेन हो चुके होते हो. वहाँ आपको जो फर्स्ट चीज सिखाई जाती है आरआर, एक राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन में पहुंचने के बाद, कि साहब आप यहाँ पर नए आए हो और ये एक ऑपरेशनल एरिया है. यहाँ पर जिसने एक भी दिन आपसे ज्यादा सर्विस की है, जो आपसे पहले आया, उसकी सुनो, उसकी सुननी है. Yes. Because he has more experience. Absolutely. He has seen combat. Yes. He has seen different situations unfolding. वो आपको बेहतर तरीके से बता सकता है कि एक सिचुएशन हो रही है, उसका क्या आउटकम हो सकता है. ईगो की कोई जगह है ही नहीं. जगह नहीं होती है. करेक्ट. ईगो की कोई जगह नहीं होती है. एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट. यू हैव टू, द बेटर यू एक्सेप्ट इट, आपका ऑपरेशनल एक्सपीरियंस और लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म एक राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के लिहाज से उतना ही अच्छा होगा. Very beautifully brought out. So that is more, that is a very important thing to note. Very good. So my QRT NCO tells me, हवलदार, कि साहब 7 वाला घर अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसके पीछे वाला, तो we will wait. एक बार वो 7 वाला घर क्लियर हो जाएगा तब एक घास को हटाएंगे. So my initial, the first this thing कि नहीं आप हटाओ, उसको हटाओ करते और दूसरा घर सर्च करते हैं. We were in little hurry because 3-6 घंटे हो गए हैं, अब हमें लग रहा है कुछ है नहीं. तो दीन अगेन एम्फसाइज्ड, बस आप इतना वेट कर रहे हैं, हम थोड़ा 5 मिनट कर ही लेते हैं, वो घर खत्म होने वाला, सर्च खत्म होने वाली 7 वाले घर की. एंड समथिंग देन अगेन आई जस्ट रिकलेक्टेड दिस थिंग, दिस थॉट दैट वाज टोल्ड टू मी इनिशियली. अपनी सिखलाई याद आई मैम बाय सूबेदार साहब, ये सुन लो कि साहब सुनना है. एंड आई रिमेंबर, मैंने कहा ठीक है, विल वेट जब तक वो घर क्लियर नहीं होता है. एंड द मोमेंट वी टर्न मैम टू वेट इन अ कॉर्नर, जब तक वो घर क्लियर ना हो, दैट गाय सडनली पॉप्ड अप फ्रॉम द सेम प्लेस. Dramatically like a movie unfolding, ma'am. And he again fired discriminately towards us, couple of burst fires, and vanished again.
What was it? He was hopping from places to places. I don't know मैम, मतलब वहां पर तब तक तो हाँ। हमारा ये था कि शायद एक ही बंदा है, हमें ये भी क्लियर नहीं था कि एक ही है एक से ज्यादा या है कि दो नहीं। हैं या तीन हैं, Correct, वी आर हाँ। क्लूलेस। सो एकदम से वो बंदा निकला, उसने फायर किया एंड सडन अगेन वी वर लकी इनफ कि Again, nobody got hit. nobody got hit Hmm. एंड द मोमेंट वी रिकलेक्टेड आवर सेंसेस, एंड मैम जो हमारी फौज की सिखलाई होती है कि जैसे फायर होता है डैश डाउन क्रॉल आड़ पकड़ो, वो वाला हमने एक्चुअल Got into action. एकेडमी के बाद एकदम से एक्शन किया एंड Got into गॉट action. इनटू एक्शन। हाँ। आया वहां पर एंड देन माय क्यूटी अंशु मेरी तरफ देखता है, कहा था ना बोला मैंने। साहब एंड वी स्माइलिंग एट ईच अदर, तो there's a little moment and तो ऐसे intense moment में भी you're smiling and passing it those has to looks, be it's मैम। So amazing, हाँ। वहां पर मैम एंड बिलीव यू मैम, हम जिस सिचुएशन में थे उस समय, अगर मैंने उसको हैशटैग जबरदस्ती हटवाने के लिए कहा होता, Somebody would have got hit. not somebody ma'am, all four of us All four. Oh, yes, you would were have been, right we were there. very right just behind, just in front of that haystack. All four of us probably would have been hit ma'am. My God. So that was the first आप again अभी turning जिंदगी point. भर नहीं भूलोगे ये बात कि सुनना है। नहीं नहीं मैम, Correct. कभी नहीं, और Yes, बाकियों को भी yes. आप बताते हो बाद में, Yes, जो आपसे yes. बाद में आते हैं लोग सर्व करने के Experience के लिए। बाद आप बेटर बता पाते हो। Absolutely मैम। Absolutely. So this again he vanished. So now we again खुश भी हैं और थोड़ा सा वो हैं खुश, पहली बात तो खुश कहाँ हैं चला गया कि चूहा? बच गए। हाँ। दूसरी चीज अभी वी आर अगेन सेटिस्फाइड कि नहीं भाग नहीं पाया, अंदर ही है अभी भी, ही इज स्टिल इनसाइड, स्टक इनसाइड, तो ही इज ट्राइंग टू हॉप इन। फिर अगेन सर्च वगैरह स्टार्टेड एंड बाय दिस टाइम हमने एक घर प्रोमिनेंट हाउस था उस पूरे क्लस्टर में जो 2-3 फ्लोर का था, जिसको हमने ऑक्यूपाई कर लिया था एज अ फायर बेस। सो फायर बेस बेसिकली मैम क्या होता है, एक बड़ा प्रोमिनेंट, आप अपने आप को एक जगह पर हाइट पे आप लेते हो, वेंटेज पॉइंट काइंड ऑफ अ थिंग, जहां से आपको पूरे एरिया को ऑब्जर्व कर सको, सो दैट अगर कोई भी हरकत आपको दिखाई देती है आप एम्ड फायर ले सको और इजी टू लोकेट समबडी हु इज मूविंग आउट। सो हमने एक बड़ा घर जो 3 फ्लोर का था उसको हमने ऑक्यूपाई किया एज अ फायर बेस एंड देन वी स्टार्टेड टू लुक फॉर with our night sights devices, our quadcopters that we have, night enabled quadcopters, thermal imager quadcopters, everything is in air. So again, and national new generation equipment is there, yes, everything is being modernized absolutely ma'am. late, yes. So that were all the kind of equipment that we have been using to supplement our operations. It's like a force multipliers. So everything is in air and वहां पर हम क्या अंधेरा है, सर्दी है, and it started snowfall around 1:30 के time. To add to the misery मैम। misery, yes. So difficult मैम इसलिए हो जाता है snowfall के टाइम में। So first thing is कि आपके जितने stops हैं, troops हैं, they are in open, जो कॉर्डन में लगे हुए हैं, everybody is in open, they cannot, visibility में भी फर्क पड़ता visibility is a big factor मैम। and जो लोग बाहर लगे हुए हैं, they have to endure that entire snowfall, बारिश, drizzle, they cannot move, they can't move, correct. After few minutes their shoes will be all soaked in wet and freezing sub-zero temperatures in January, in the month of January. So it becomes a little difficult and we are all human again after all ma'am. So एक थोड़ा सा वो टाइम होता है कि कई बार आपको लगता है कि इनिशियली आप जब जाते हो आपको लगता है कि यार हाउ विल दे सस्टेन और सर्वाइव, बट देन दैट इज द ग्रिट हाउ द राष्ट्रीय राइफल्स आर डिफरेंट। उनका जो एटीट्यूड है मैम कैसे डिफरेंट है बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस ऑपरेट कर रही हैं, दे आर रॉ पीपल। मतलब वो जो एक डर आप बोलो या जो उनका एग्जिस्ट करता फील है वो आई थिंक इतना ज्यादा उसमें एनग्रॉस्ड रहते हैं with that firefight and with that thing of कि somebody has gotten stuck in our cordon, who's a terrorist, जो एंटी नेशनल है, उसको एलिमिनेट करना है, कुछ भी करना पड़े उसके लिए, he has to be eliminated. Fire inside that keeps you alive, the entire cordon. Sometimes these cordons last for more than 48 hours, 72 hours. So उससे ज्यादा भी चलते हैं, but the people are still out there in the snowfall start हो गया मैम and विजिबिलिटी अगेन लाइक यू सेड कि कम हो जाती है मैम। हम कॉर्डन लाइट्स लगाते हैं उसको एरिया को थोड़ा लिट अप करने के लिए, बट देन उसकी लाइट्स की भी बट ही कांट एस्केप द कॉर्डन फॉर श्योर। इट इज डिफिकल्ट मैम, इट इज मतलब आई वोंट से ही कांट एस्केप, बट विद द राष्ट्रीय राइफल्स कॉर्डन बीइंग इन प्लेस, एवरीबॉडी वेल इक्विप्ड, आरआर फिर आ रही है मैम, आरआर के कॉर्डन से एंड वी टेक प्राइड इन इट। आरआर बटालियंस टेक प्राइड इन इट कि एक बार आरआर के कॉर्डन में फंस गया फिर बाहर नहीं जा सकता, इतना इट इज नॉट सो इजी, इट्स अ केज, यू कैन नॉट गो आउट, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। जहां पे वो जाएगा तेरे को वहां से फायर ही मिलेगा वापस। सो फाइनली जिस घर में मैं था उसमें 2 तरफ विंडो थे, एक तरफ और 2 तरफ, और पीछे से बंद था वो घर, मतलब दैट रूम स्पेशली।
So I positioned myself on both the windows. तो 2 बंदों को मैंने अपने एक विंडो पे लगाया, 2 बंदों को सामने वाली विंडो पे लगाया कि आप इधर ऑब्जर्व करो अगर कोई हरकत दिखाई देती है, और मैं सामने वाली विंडो से ऑब्जर्व करता हूँ. दूसरे बडी पेयर को मैंने बोला कि आप इधर से ऑब्जर्व करो. एंड वी कॉल स्पेकुलेटिव फायर की तरीके से हम करते हैं मैम, टू ड्रॉ सम फायर सो दैट वी ट्राई टू गेट द लोकेशन ऑफ अ टेररिस्ट. सो आई टोल्ड ब्रीफ माई बॉयज कि आप बीच बीच में हर 5 मिनट के बाद 3 राउंड 4 राउंड का एक स्पेकुलेटिव फायर कीप डूइंग इट इन द जनरल एरिया. I see. Yes, ma'am. So they don't have a target in that case. They will just fire 2-3 rounds in that general area, and if there's somebody hiding there, he will probably retaliate. Pop out. So हमारा first aim ये होता है कि retaliatory fire जैसे ही आएगा तो we will get the location of exact location of the terrorist. तो उसके लिए speculative fire करते हैं. तो मैंने दोनों टीम को brief किया कि आप इधर करते रहो, आप इधर speculative fire करते रहो. And because of the dark, ma'am, एज एन ऑफिसर आपका काम होता है थोड़ा सा विजिल रह के और अपनी टीम को थोड़ा सा मोटिवेट करते रहना, गाइड करते रहना. सो आई टोल्ड देम कि आप फायर करते रहो अपनी तरफ से स्पेकुलेटिव बीच बीच में 2-2 मिनट 3-3 मिनट के गैप पे. एंड आई वाज ट्राइंग टू लोकेट कि फायर ड्रॉ कहाँ से हो रहा है. सो जब भी वेपन फायर करता है मैम, देयर इज अ फ्लैश जो निकलता है, जो अंधेरे में बहुत विजिबल होता है. हमारी बेसिक सिखलाई में हमें सिखाया जाता है हमेशा कि जब भी आप बाहर हो, एम्बुश में हो, you can assume कहाँ से आ रही है, एम्बुश में हो, आप कभी भी हो, तो you have to always look for the flash which is there. So finally after around an hour का ये exercise मैम, I could finally locate a place जहाँ से I thought कि यहाँ से some flash is coming, somebody is firing from this place. So then reoriented my team कि ये जगह दिख रही है तुमको. बोला yes, हाँ साहब. मैंने कहा keep firing on this place for next, don't have to shift your fire. Now you keep firing on this particular place for another 15, 20, 30 minutes. अच्छा. Again, in a gap of 2 minutes. Going उसके बाद भी. Yes, ma'am. So and after almost half an hour, 30 minutes, जब ये exercise start हो गई मैम, we had a huge blast was heard उस particular जगह पे जहाँ पर हम fire कर रहे थे. Okay. So you threw some grenade or something? We had no idea initially, ma'am, कि वहाँ पर क्या हुआ है, but there was a blast, तो we realized कि कुछ तो there's somebody or someone who's there. एंड देन वहां से फायर आना, ड्रॉ आना बंद हो गया. देयर वाज नो रिटेलिएटरी फायर दैट वाज कमिंग टू अस, बिकॉज हमारे जिस विंडो में बैठे हुए थे उसमें सब विंडोज में नहीं विजिबल भी था मैम, प्लस हमारी सारी विंडोज में फायर के छेद हो रखे थे. मतलब ना, वी वर ड्रॉइंग फायर, तो वी वर वेरी दिस थिंग. सो ही वाज फायरिंग, तो हमारे सारे विंडोज पेन वगैरह सारे टूट चुके थे, पूरी वॉल पे पीछे बुलेट मार्क्स वगैरह हो चुके थे. एंड सडनली दिस फायर स्टॉप्ड कमिंग टू अस after that blast. So I requested one of the company commanders who are closer to that location कि sir, I'll request आप एक बार कोई search team भेजो नीचे, so that we can get to know कि वहाँ पर क्या था. And we sent our search team, and the moment he showed the light, there was a guy who was neutralized. उसकी body पड़ी हुई थी वहाँ पर, and there was a weapon next to it. Okay. So that's how we got our first terrorist neutralized. So probably, ma'am, what had happened, he would have been holding grenades on his chest. Maybe he had tried throwing on to you, अपने आप ही गिरा दिया. Yes, ma'am. So वो probably वैसा कुछ हुआ, and उसका body was all because grenade था लगा हुआ, तो पूरी shatter and all over intestines and everything was out. So we picked up the weapon, came out. So we were confirmed कि one is down. One is down, ma'am. Now we start looking for. We were still not sure कि अभी एक और बच गया, because we were sure कि 2 तो minimum है. Because we were drawing fire from 2 sides. इधर से फायर आ रहा था, इधर से फायर आ रहा था, दोनों विंडो से फायर आ रहा था. आपको पता चल रहा था. Yes, ma'am. So we were sure कि 2 तो मिनिमम हैं ही, because दो साइड से साइमल्टेनियस फायर आ रहा है, इधर से इस विंडो से भी, इस विंडो से भी. So we were looking now कि जो दूसरा बंदा रह गया है या उसके साथ में अगर कोई और भी है, तीसरा बंदा, तो उसको भी ढूंढना है. So now we started this hunt again, and then इसको करते करते we were not able to locate again. फिर first light में morning, we are eagerly waiting for the first light to happen, because लाइट नहीं, आपके धीरे धीरे लाइट्स डिम होती जा रही हैं. एंड मैम फर्स्ट लाइट का जो टाइम होता है मॉर्निंग का, जब वो हो रही होती है फर्स्ट लाइट, मोस्ट डिफिकल्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशंस, बिकॉज दैट इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी प्रॉब्ली फॉर द टेररिस्ट टू एस्केप. तो वो हर बार ऐसा होता है मैम कि अगर वो बच गया है जिंदा तब तक फर्स्ट लाइट तक, तो ही विल डेफिनेटली ट्राई टू एस्केप ऑन दैट फर्स्ट लाइट. एंड उसको भी पता होता है कि लोग बाहर बहुत देर से बैठे हुए हैं, थक गए हैं, दे आर नॉट दैट विजिलेंट, looking for an opportunity. So thankfully, ma'am, first light हुआ and they couldn't escape. But ma'am, then the moment first light happened, we realized that there were 2 ancillary structures, big houses. One was under construction and one was already constructed. Next to that place? In the same area? Inside the cordon, ma'am. Okay. So they both were, उनके बीच में पतली सी गली बनती थी.
Okay. इधर एक घर था, इधर भी घर था, तो बीच में पतली सी गली बन जाती थी उनके. देवर गॉट होल्ड अप देयर अच्छा. एंड वो गली okay. पीछे से बंद थी. व्हाट दे वर डूइंग एंड वो बाहर आते थे उस गली से. दे यूज्ड टू फायर ऑन अस, To try to escape. एंड देन कवर Go लेने के लिए back वापस there. गली में चले जाते थे. और हमारे लिए इशू सबसे बड़ा ये था मैम कि वो इतने बड़े स्ट्रक्चर थे दो. वॉट एवर वी वर फायरिंग, स्मॉल आर्म्स, AK-47, then we tried firing grenades, we tried firing MGLs, multi-grade barrel grenade launchers. हमने सारा कुछ फायर ट्राई किया, बट बिकॉज ऑफ द एनॉर्मिटी ऑफ द हाउसेस वो सारा फायर वो घर में रुक जाता था, एंड देयर वाज नो इफेक्टिव फायर On them. वी वर एबल टू पुट उनके ऊपर. एंड दिस अगेन कंटिन्यूड फॉर 2-3 hours, एंड फाइनली एट 9-9:30 वी डिसाइडेड कि देयर इज नो चॉइस बट टू फिजिकली गो एंड कब तक वेट करोगे? clear them. Now, physically taking this choice by a commanding officer of our Rashtriya Rifles Battalion is a very, very difficult choice to make, man. Absolutely. Because somebody going very close to the people who are hiding, and then when we are aware they are hardcore militants, well equipped, they have armor-piercing bullets. That was already confirmed. The entire operations. Yes, ma'am. So we were aware कि armor piercing bullets का हम क्या issue होता है? If they fire, even if you are wearing a bulletproof jacket, they'll pierce through it. So it is a very difficult call to take for a commanding officer. Absolutely. But we finally took that call कि करना ही है, because we have to eliminate them. And it was decided that only 4 of us will enter that location. You were one of them. I was one of them. So 2 buddy pairs that we talk, as we call them. So one buddy pair led by an officer, so my buddy, and another buddy pair again led by one more officer. Okay. So again, ma'am, both the officers were leading the operation. Yes, again. Yes. We adequately briefed our buddies. So we have in Rashtriya Rifles Battalion, the equipment is very good, ma'am. So we have been equipped with shields, ballistic shields. Yes, yes. In Rashtriya Rifles. So we briefed our buddies कि भाई तेरा काम सिर्फ इतना है, you have to hold the shield intact. Tight. Because those shields are very heavy. Yes. 30, 40, 50 kgs Correct. की shields होती हैं मैम, ballistic shields. So it cannot happen कि आप एक हाथ से shield, जैसे हम और एक हाथ normally से movies fire. में देखते हैं मैम कि एक हाथ से shield उठाते हैं और एक वो हाथ से fire superhuman करते है. हैं. That level is different. Yes, ma'am. So वैसा नहीं होता है, just हाँ. to bring the It's actual very picture. important for It is, people to it know is, this. yes, ma'am. अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, you cannot hold that shield above your knee for more than 2-3 minutes. So we briefed them कि you weapon आप अपना पीछे करो, because you will not be able to fire as it is. उसकी लाइफ भी आपके ऊपर Yes, ही वो है पूरी. Absolutely, ma'am. Wow. So उसको weapon हमने पीछे कराया, and he is being briefed कि कुछ भी हो जाए, whatever hits the shield, you cannot leave the shield. You cannot keep the shield down, और ये तुम्हारे यहाँ से छूट नहीं सकती shield. The moment तुम्हारे यहाँ से shield छूट गई, all 4 of us probably will be dead or hit. So उनकी briefing इतनी थी. एंड हमारी क्रिटिकलिटी थी कि जो गली हम जहाँ पर वो छुपे हुए थे मैम, वो खुलती थी एक छोटे से ऑर्चर्ड ओपन एरिया था छोटा सा. Okay. वो पहले आपको, आप इस तरफ हो, यू हैव टू क्रॉस द एंटायर ओपन एरिया एंड देन वो गली तक पहुंचोगे आप. अब इसमें अगेन एक क्रिटिकलिटी हो जाती है मैम, व्हाइल यू आर ज्यादा है आपकी और पॉकेट्स में. वी आर एक्सपोज्ड. यस ऑफ कोर्स. सो व्हाइल वी आर क्रॉसिंग दैट ओपन एरिया, अगर उस समय वो गली से बाहर आ गए एंड दे स्टार्ट फायरिंग ऑन अस, वो दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट, बिकॉज वी डोंट हैव एनी कवर इन दैट पर्टिकुलर टाइम. So again, that was a briefing कि इस open area को जल्दी से जल्दी, you have to rush whatever you want to do, and you have to cross this area immediately. Luckily, ma'am, we could reach. We rushed there and ऐसे we में could speed reach. भी कितना मैटर करता है. Yes, ma'am, and speed and holding that shield, God. ma'am. So both of us, both the officers were taking our aim above that shield, because that shield covers you. So Right. any which ways your half of the head is exposed if you're taking the if you're taking an aim shot. So we somehow were lucky enough to reach that gully. After some time, and then the final thing had to start कि कैसे करके we have to find. We were not aware कि कितना depth है. तो that gully was around 20 meters depth. So not too deep. Not too deep. 20-25 meters deep. So sir, जो मेरे साथ officer थे, he told, तुम अगर आप इसको गली मानो किसी एक डोर को, तो डोर के एक एंड में मैं हूँ with my buddy, and डोर के दूसरे एंड में जो दूसरे ऑफिसर हैं उनका बडी है. एंड नाउ द गली इज इनसाइड. तो ही टेल्स मी कि तू पहले ट्राई कर, ट्राई एंड लोकेट अगर तुझे अंदर कुछ दिख रहा है. ओके. सो मैं ठीक है सर. तो आई ट्राइड लुकिंग इनसाइड द गली विद अ लिटिल पीप इनसाइड, एंड आई कुड इंस्टेंटली सी 2 people standing there. थके तो वो भी होंगे. Very close. One of them was on his haunches, almost sitting like me, like I'm sitting.
So probably he was hit or maybe injured with something रात के firefight में. Correct. The other guy was standing tall Next to him. I could see the weapon So immediately. they did not know about your presence yet. Ma'am, earlier they didn't, but because they are also very smart, so while we were planning all this, so there was lull, obviously there was no firefight going on. So they had a fair idea कि अगर lull है कुछ fire नहीं हो रहा है, there's something the Fauj must be planning is happening. For us. Correct. So probably they were expecting us definitely कि इतनी देर तक नहीं आया तो कोई ना कोई फौज या तो आ रही होगी फिजिकल उसके लिए. तो probably they were very sure they were expecting us. So the moment I saw him, that was the first time my experience कि इतनी पास से you see that and that eyeball to eyeball contact अच्छा, वाला he एक saw जो you, होता है. you saw Yes, him ma'am. type of a thing. One a fraction of second, ma'am. Oh my God. And then again come back and then I told मैंने सर तो he's just hardly 10 meters from us. So बोला ठीक है, it is मतलब अभी तो we are here, तो we'll take. I mean decided It's now or never. Yes, Just ma'am. go for So it. we decided that अपने buddy को हमने again बोल किया कि we will fire, and so AK-47 it carries 30 rounds in a Right. magazine, ma'am. So we decided कि I'll fire first, and the moment my magazine is over, immediately he has to fire so that I get time to refill my magazine. तो उसमें बीच में कुछ gap ना आए, ma'am. And the moment we finally tried to execute it, and हम अंदर गली की तरफ, now we have to face that गली, obviously we have to fire, and we started firing. The moment I had to about to start my fire and shifted inside, I could literally see him throwing something towards me, but it was too late to react, obviously, ma'am, because आप बहुत पास हो, आप already you are in the position to fire. He lobbed a grenade towards me, sitting बैठे ही मैं. He lobbed towards me, and grenade का जैसे हमें पता होता है, grenade का killing radius is 50 meters, and we were 10 meters short of him. My God. So he lobbed it, but again, ma'am, it was too short and too early आपको to react. अब now it was too late to react. ये बताइए कितने seconds में grenade फटता है? मैम grenades में अलग-अलग switch होते हैं, जैसे हम बोलते हैं. तो there's a 4-second switch, there's a 3-second switch, there's a 2-second switch. So maximum it can be up to 4 seconds. So it was maximum is 4 seconds. Maximum is 4 seconds. And 4 seconds just got over. Yes, ma'am. So it was a probably as a Chinese grenade, जो generally उनके पास होते हैं. Generally militants carry their Chinese grenades, ma'am. जिसका 2 या 3 सेकंड का फ्यूज होता है. There's no 4-second fuse in Chinese grenade. So it is either 2 seconds or 3 seconds. So he lobbed a grenade, and by the time we started firing, we fired the entire magazine. Then Sir fired his entire magazine, and there was all dust and पूरा, because उसी बीच में grenade भी फटा, मैं. So what exactly was the location? Like that guy was holding that ma'am, shield. He didn't have any shield, so he was taking cover. Your buddy was holding the shield. My buddy was holding a shield, and I was firing from above the shield. तो उसके आगे grenade फटा. हाँ ma'am. So luckily that shield also was a protective thing absolutely, for you, ma'am. of course. So shield में मैम थोड़ा सा एक glass लगा होता है, it's a bulletproof glass, so that the buddy can see through that glass कि उसको दिखता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ. He's not totally blind that he's not carrying like this. So there's a small see-through glass, which is again a bulletproof glass, so you can actually see also through through that shield. So he's holding that shield tight, and we are firing. The grenade also blasted at the same time. There's all dust all around all places. And finally, when there was a lull, we again took a cover. We waited for the dust to settle down for a couple of minutes, and then when the entire dust settled down, again we tried to look अभी क्या situation है अंदर. So when I peeped inside, so both the guys were on the ground, left and right, a little away from each other. So I told कि सर bodies दोनों दिख रही हैं मुझे. तो बोला मर गया. मैंने कहा सर moment तो नहीं दिख रहा है मुझे, but then probably we have to confirm. So as per our Sikhlai, ma'am, we take confirmatory shots, fires on them. So confirmatory shots लिए, and we were confirmed कि both the terrorists were dead now. Grenade का भी तो impact उन पे भी तो आया होगा. Probably, ma'am. Most probably, ma'am. So this thing had happened, and then we confirm on the Motorola कि sir on our radio कि sir both the terror tangos neutralized and we're good to go. इस टाइम में मैम बिकॉज सीओ के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज 4 लोग अंदर हैं. इतना अंदर से आवाजें आ रही हैं सिर्फ फायर फाइट की, किसको लग रही होती है जब तक नहीं पता होता है तब तक सीओ के लिए एब्सोल्युटली मैम इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टाइम फॉर अ कमांडिंग ऑफिसर. सो फाइनली ही हर्ड आवर वॉइस कि वी हैव बीन न्यूट्रलाइज्ड बोथ ऑफ देम एंड वी आर sigh of relief. Sigh of relief. बोले ओके ये फिर then orders follow the okay we'll recover the body and all those. Until the time our buddies are still holding that tight. And my buddy order is an order. Yes ma'am. So by the time जैसे उसको एक सुनाई दिया कि सीओ साहब को भी बता दिया गया है, now it is done. I can relax. So he finally keeps his shield and then turned towards me कि साहब मर गया दोनों.
और then he is stunned, he is looking with a little surprise. मैं क्या हुआ? बोला साहब आपको ब्लड आ रहा है आँख के पास में. मैं कहाँ पे? बोला साहब लेफ्ट में. तो मैंने by the time I put my hand on my left eye, my entire hand was soaked in Oh, I see. blood. Okay. I was hit, ma'am, in my left eyelid. A splinter came hitting Yes, you? ma'am. Oh my God. So Acha. it probably ricocheted from somewhere, Yeah, or yeah, it came directly through side of the Luckily your shields. eye got saved. Yes, ma'am. So a splinter got hit on my left eye Okay. and was bleeding profusely, proper. So अब सर इधर सामने खड़े होते मैम. The moment he looks towards me and bleeding, and बोला ये क्या हुआ? मैंने कहा सर I don't know, मुझे तो I'm not feeling any pain, ma'am, actually. The adrenaline rush इतना ज़्यादा होता है कि वो पेन भी फील नहीं हो रहा. Absolutely, I'm not feeling anything Wow. actually, ma'am. So he again puts out on a radio कि सर अभिषेक को लग गई है. अब again मैम same thing. वही For a tension CEO sitting वापस. outside, हाँ. अगर somebody tells कि सर अभिषेक को लग गई है, अब he is not aware कितनी लग गई है, हाँ. कहाँ लग गई है, कितनी टेंशन चोट बिल्ड लगी अप है. होना शुरू हो Yes, गया ma'am. होगा. करेक्ट. तो ही इमीडिएटली आज की कहाँ लगी, क्या लगा, कैसे करके. तो ये सर समझ नहीं आ रहा है, आई एम सेंडिंग इट आउटसाइड. तो आई जस्ट हैंडेड ओवर माय वेपन एंड जस्ट प्रेस्ड इट हार्डली एंड देन मूव्ड आउट फ्रॉम द कॉर्डन. एंड हमारा जो रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर होते हैं मैम, एज पर आवर ड्रिल, दे ऑलवेज देयर इज व्हेन द ऑपरेशन इज ऑन. इमीडिएटली अटेंडेड मी मैम एंड सॉ मी. तो उसने द फर्स्ट रिएक्शन वाज कि सर एंट्री वुंड इज स्मॉल, सो बुलेट तो नहीं हो सकती ऑब्वियसली, so maybe it is a splinter, but we are not sure it has gone through or it has pierced through, so we are clueless about The that. force was with you that day. Yes ma'am, absolutely, very much. Wow. So how many stitches you got? So ma'am, stitches वहाँ पर तो नहीं दिए उसने. Immediately evacuated. As per the procedure में वहाँ पर immediately we have to evacuated. So till then I was speaking to him. मैं बात कर रहा हूँ, he is cleaning my wound and everything, and I'm speaking to him. तो he suddenly gets agitated कि सर थोड़ी देर चुप बैठोगे. Let me do my work. तो मैंने कहा ठीक कर ले. फिर then by the time I was evacuated, so I got unconscious ma'am, and then I landed up in 92 base hospital. Srinagar was there for about 2 weeks, then shifted to R&R hospital Delhi ma'am, and then again I was there for almost 15-20 days. So I got almost all surgeries done, and later I was told that the 2 splinters, metal pieces, had been lodged inside my eye and they will remain there. So you have splinters inside your eye at this moment as well? Yes ma'am, I have 2 splinters in my eye, left eye. So do they impact your vision or ma'am, vision was thankfully fine. So very very minor diminish. So through the upper eye के ऊपर से it has gone somewhere towards your. So ma'am, oh my God. Like when I reached R&R hospital and I reported in the eye department. So eye department के जो head of the department, Brigadier Sanjay Mishra, he attended me, बैठाया ऑफिस में, and he inspected he read the case first and then he inspected me on the machine and everything, and he sat down like this, sitting in front of me, and the first expression that he gives me, that you are one lucky chap. So are you? तो मैंने कहा sir what happened? Well, I've already spent almost 26 years now doing the same thing. Never seen a case but, like this. A splinter has gone through your left eye, grazing through your eyeball. It has grazed through my eyeball. मेरे को तो है a little cut. आपकी eyeball को touch करता हुआ graze करके गया था मैम. तो there was an internal bleeding in my eye, ma'am. So my eye and everything had got turned black. पूरा ही हो गया था. I couldn't see anything initially, ma'am. पूरा black हो गया था मैम पूरा. But so vision आपकी ठीक है. तब तक मुझे नहीं दिख रहा था मैम clearly. But अभी it is fine. As we speak, it is fine, ma'am. God bless you. Minor diminish, ma'am. So he said कि it has grazed through your eyeball. A splinter has gone off 6 mm. 2 splinter गए हैं, and it has bloody missed everything vital. It is so surprising. मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे जहाँ तक पहुँचे हैं और कैसे पहुँचे हैं 2 splinter, and they have missed everything vital. Your retina is intact. Your eyeball is fine. मतलब we'll surgery से उसको we'll correct it. And your most importantly optical nerves are fine because they are the most sensitive elements in your head. Wow. And your optical nerves are fine. हम अभी बात कर रहे थे moving into the fire, keeping your fears in your mind, and this is exactly what happened. Absolutely, you moved into the fire, knowing what is there and having see, we are all humans. Absolutely, ma'am. तो just in short मुझे बताओ, जब आप ऐसे fire moment में आप जब पता है कि आप घुस रहे हो, do you have a little fear inside या वो fear आता ही नहीं है आसपास, भटकता भी नहीं है? नहीं मैम, मतलब माय अंडरस्टैंडिंग इज, और जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग समझाओ मुझे. यस मैम. सो अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस मैम कि हम जब बोलते हैं कि somebody is not afraid,
So there's a famous quote that says कि fear is not actually not being afraid. कि you are not afraid तो it's doing fear है it नहीं. anyways. Yes, ma'am. So you still fear something, but you have to overcome that. Overcome the So the courage that we talk about is overcoming probably that fear that you have. And everybody is afraid. Yes. Like You other can't than say what that. Yes. other than what General Manik Shaw had said, कि if you are Has to be saying a you are not Gorkha. afraid, either you are lying or you are a Gurkha. Yes. Absolutely. So everybody is afraid that way, I believe, ma'am. But Yes. Courage is probably overcoming that fear in that moment, which is the most critical, which will make the difference if you are able to overcome that particular moment, overcome your fear in that particular moment. It's beautifully summarized by you, Abhishek, because this exactly is what I was wanting to hear from you. It's not just, see, there are some people who still live with us to tell the tale. Yes, ma'am. You're one amongst us. Absolutely, you know, who has lived to tell us the tale of that night, because people know the medals. Yes, ma'am. उनको वो जो क्या गुजरी है उस moment में, उनको वो नहीं पता. Absolutely, ma'am. This exactly, and such moments have happened. That is why we have these gallantry awards, yes, which ma'am. are awarded to the likes of you, you know. Absolutely, and we are ma'am. so proud of you for your bravery, for your courage, and the kind of determination with which you have gone about this operation and keep doing it every day. Yes, ma'am. Without that, and the summary that you gave us of courage, it's very important for the youth out there Yes, to ma'am, understand. So before we leave, Abhishek, Yes, एक ma'am. छोटा सा मैसेज आप हमारे यूथ के लिए जो कंफ्यूज्ड हैं, शायद दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट्स हैं बट समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, दे आर लॉस्ट, आई थिंक. Yes, ma'am. सो आप अपनी तरफ से एट इफ आई मे आस्क, हाउ ओल्ड आर यू टुडे? Ma'am, I am 33. You're 33. Yes, ma'am. एंड आप उस बच्चे को जो आज शायद 20 साल का है, 21 साल का है और अपने आप को यूनिफॉर्म में देखता है कहीं ना Yes, कहीं ma'am. इन हिज ड्रीम्स, Yes, ma'am. क्या मैसेज देना चाहोगे आप? So, ma'am, with my little experience in Fauj, which of about a decade, ma'am, I've already put in 11 years of service, and coming from a background जो बिल्कुल ही was a blank slate for me. आर्मी में ज्वाइन करना was totally from scratch. जैसे मैंने आपको बताया कि कोई background नहीं था, कुछ नहीं था. The one thing which I always tell people and which I feel very strongly about it, ma'am, जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, जिसने मुझे हमेशा ड्राइव किया, was probably the clarity, first of all, what do you want to do in your life. That clarity is very, very important, ma'am. The first and foremost thing, that is the clarity of that thought. And with clarity, the earlier it comes in your life, the better it will be, ma'am. So like I said, that I decided in 7th class, 8th class, 6th class that I want to join army. So उसमें होता है क्या, ma'am? Again, I'm telling my own experience, ma'am. I'm not a motivational speaker. So जब आप early stage में कुछ चीज़ decide कर लेते हो कि मुझे ये चीज़ करनी है. So over the period of time, the aim or the dream that you, or whatever you call it, just initially 6th class, and it was my dream to join army. By the time I was in class 2, plus 2, or leaving class plus 2, it converts into a passion over the period of 3-4 years, because you're living it every day. You're dreaming about it every day. So it converts into passion. Yes. And after plus 2, appearing for CDS exam, again spending 2 years with that passion, yes, वो पागलपन में बदल जाता है. Yes, and till you reach that point. So ma'am, वो time, वो पागलपन आई थिंक आजकल बहुत, मतलब दिस माय, अगर आपको कुछ अचीव वैसा करना है जो आप सोच रहे हो, वो पागलपन थोड़ा जरूरी है, आई थिंक. और ये पागलपन आपको कभी भटकने नहीं देगा आपको. अपना देयर इज नथिंग दैट कैन टेल यू कि ये बेटर ऑप्शन है, ये नहीं है, बिकॉज आपको, आपके लिए एक ही ऑप्शन है, मैम. एब्सोल्युटली. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड decide as early as possible in your life कि क्या करना है, and then don't get deviated. Like I said, ma'am, I plus 2 में I appeared for NDA exam. I could not appear my NDA exam. I was never a bright student, ma'am. I keep telling to people, जैसे लोगों को लगता है मैम अगेन कि बहुत ही पढ़ने वाला कोई होगा, who has appeared clear NDA on all these things. I have never been a bright student. जितनी मेरे घर में, मैम, I live in a joint family, ma'am. I have cousins, my younger brothers, sisters, siblings. तो मैं हमेशा मजाक में बोलता हूँ घर में अपने माय फादर एंड माय चाचा जी लोग को कि जितनी सबने मिला के एक साथ मार खाई है, उससे ज्यादा मैंने अकेले पढ़ाई के लिए मार खाई है. लेकिन एक बात आपने ये गलत बोली कि फौजी जो है मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है. लेट मी टेल यू व्हाट माय फीलिंग, माय अंडरस्टैंडिंग, मेरे दिल की बात ये है कि हर फौजी अपने आप में एक मोटिवेशनल स्पीकर है, क्योंकि उसने वो ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करी है ना, वो एक्सपीरियंस से बात करते हैं. मोटिवेशन क्या होता है? यस मैम. आप तभी मोटिवेट कर पाते हो जब आपने कोई चीज एक्सपीरियंस की है. बुकिश नॉलेज से कोई मोटिवेट नहीं कर सकता. एब्सोल्युटली मैम. आपकी स्टोरी आज जो आपने सुनाई है, आई विल कॉल इट अ स्टोरी, बट इट्स नॉट रियली अ स्टोरी, इट्स अ रियल लाइफ
moment which you have lived. Yes, ma'am. I'm sure it has touched thousands out there, if you know, those who are watching it. And I hope that it yes, does, ma'am. absolutely, Abhishek, and I really want to thank you from the bottom of my heart Yes, ma'am. कि आप आज हमारे स्टूडियो में आए Yes, ma'am. और आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी, एंड फॉर पीपल टू नो कि अवार्ड्स आर बियॉन्ड जस्ट द स्टार एंड वॉट एवर दे आर वेयरिंग ऑन देयर चेस्ट. इट इज दिस मोमेंट, इट इज दिस स्टोरी दैट दे हैव लिव्ड टू टेल अस. दिस इज व्हाट टेल्स अस उस स्टार की इम्पोर्टेंस, उस मेडल की इम्पोर्टेंस. सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम, वंस अगेन इन शी स्लेज with another episode with another story of valor and courage. Till then, Jai Hind, Jai Bharat.